Recording in progress. What should be the direction of magnetic field? Direction of propagation is given on this side. Electric field is vibrating upward at this moment. Magnetic field should be this side or this side. Only two options. All three should be mutually perpendicular. Magnetic field, if it is there, so E cross B. E से B की तरफ जाएंगे, thumb will come towards C. Cross product में, it should be E cross B. So B has to be along the positive x-axis. Along positive x-axis. इधर आएगा. Therefore, E cross B will match along the this direction. Negative that C इधर दिया है, C का इधर दिया है, तो E cross B should be along C. Direction of propagation. Got it? So along the positive x-axis. Next moment पे थोड़ा आगे जाने के बाद E will come down, B will go this side, C will continue to remain same. Change होता है ना oscillation. जैसे इसमें देखा था हम लोगों ने. We have seen somewhere here. When E is this side, B is this side. Now when E comes down, B goes that side. Direction of C remains same. E cross B will continue to give along this direction. All right, so that's how direction will be found out. If two are given, third can be found out. Previous class we have seen electromagnetic waves. उसको definition देखी हमने, direction वगैरह, properties also we have seen. And numericals we have seen. This one is the important property. A ratio of electric field to the magnetic field remains constant, and that is equal to the speed of light in that medium. Okay. And also momentum is equal to energy in the EM wave divided by speed of light in that medium. यहाँ से देखो एक और इस प्रॉपर्टी से एक पॉइंट और लिख सकते हो. देखो ये प्रॉपर्टी दिख रही है आपको. If the wave is moving in the medium, other medium के लिए, for other medium यहाँ पे लिखूं मैं, for other medium, suppose glass या water में wave is going, तब क्या लिखेंगे? तब speed of light will be v in that medium divided by permeability of water and permittivity of water. ये vacuum के हैं. When we put the not symbol, then it is for vacuum. When we don't put the not, that will be for that medium. तो उस medium में these values will be changing. तो ये put करने से हमें speed of light मिल जाएगी. और you know that if we divide C by V क्या होता है बोलो? किसी को याद है 10th में पढ़ा था हमने C by V, speed of light in vacuum divided by speed of light in the other medium gives us what? Refractive index of that medium, n. अगर हम ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे लिख दूं, एक काम आएगा कहीं पे आपको. स्पेस कम है, लेट अस मेक सम स्पेस. थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा. Okay, let me write that point here. Okay, let me bring this question down. Because next chapter will be this only. हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं tomorrow. So that point is required, maybe useful, maybe important. Okay. Okay. Therefore, divide करते हैं. Therefore, refractive index of medium n will be C by V. That will be under root of
म्यू इंटू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हमें उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पता है, ये वैल्यूज ये तो पता ही रहती है हमें, है ना। अगर उन्होंने रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी दे दी तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल सकता है। इनडायरेक्टली दे में गिव अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय, ओके ये कितना, ओके एक ये कितना हो जाएगा बोलो, n विल बी इक्वल टू रेशियो दिस इनफैक्ट विल बी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है ना। तो एप्सिलॉन आर बोलो या के भी लिख सकते हो उसका। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस is important, this relation is important. कभी कभी I see this as an objective question, है ना। Clear to everyone? देखो ये प्रॉपर्टी 7th अगेन न्यू लेसन, हमने देखा था कि if mu and epsilon, I mean relative permeability and permittivity, then speed of light in that medium is given by v। हाँ यहाँ पे तो लिखा तो नहीं है ये वाला पॉइंट, तो डिवाइड कर देंगे अभी यहाँ पे, ये दिस इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ऑलरेडी रिटन था। एंड वैक्यूम में in case of vacuum it will be this, so we know refractive index of medium is c by v, speed of light in vacuum to the speed of light in that medium, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। this ratio is nothing but a relative values। clear? So this can be useful for objective question। other properties you have to remember as a formula, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। एनर्जी ट्रांस, ये रेशियो हम ये प्रूव कर सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में, यू नो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से भी नो मोमेंटम इज एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज सी बाय न्यू, तो सी यहाँ आ जाएगा, न्यू ऊपर आ जाएगा, दैट विल बिकम एनर्जी। तो ये रिलेशन मिल जाएगा हमें, प्रूव कर सकते हैं इसको हम लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। मोमेंटम ऑफ द फोटोन, आई मीन मोमेंटम ऑफ द फोटोन के लिए भी रहेगा और वेव के लिए भी रहेगा ये रिलेशन। तो मोमेंटम इज एनर्जी ऑफ द वेव divided by c, got it? So this was done in direction also, this spectrum was also done, है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की है, मैक्सिमम मोस्ट इज गामा रेज। ठीक है, तो इसको अरेंज करना था ये क्वेश्चन, विच अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव। अच्छा वेवलेंथ के ऑर्डर में, वेवलेंथ इंक्रीजिंग मींस जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। increasing order of wavelength, least wavelength will be of the wave having highest frequency, सबसे ज्यादा क्या इसमें से in this given, तो UV will be highest frequency, least wavelength, तो UV आएगा पहले, अल्ट्रावायलेट, नहीं गामा है, गामा भी दिया है ना, गामा आएगा पहले, गामा इज आल्सो गिवन, सबसे कम वेवलेंथ, देन यूवी का नेक्स्ट, उसके बाद इंफ्रारेड, आईआर, देन रेडियो। रेडियो वेव्स जो है लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, गॉट इट? तो ये सीक्वेंस बनेगी। You can see the spectrum, you have to remember that। सबसे नीचे रेडियो था, फिर माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एंड देन एक्स-रे, देन गामा। Do you remember this?
देखो यहाँ पर दिए, ये हमने सब ऐसे अलग से लिख दिया था। देखो ये दिस वन वाज द स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऊपर जाने से वेवलेंथ घट रहा है। क्लियर? ऑलराइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजेस की क्वेश्चन आते हैं, फिर बोलते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाइए। तो यूजेस वर डन, यूजेस हो गए थे सबके। यस, आई थिंक वी आर डन इट, है ना। गामा रेस के यूजेस जो है इन कैंसर ट्रीटमेंट फॉर किलिंग द कैंसरस cells. X-rays also for crack detection in the bones or in the metals, and other medical sciences and other uses. And ultraviolet में killing the germs and bacteria in the water, and used in the packaging industry for killing germs and bacteria, and to sterilize the surgical instrument, and used in laser laser eye surgery for eye surgery and so on. ठीक है, uses जो है important है। कभी कभी sometimes from this table they ask the question, उनकी what is called X-rays की wavelength की range लिखिए 1 millimeter to 10 to the power -3, है ना। And how they are produced, एक बार माइक्रोवेव का पूछा था। They are produced in magnetron wall, प्रोडक्शन वाला टेबल। और X-rays are produced in the X-ray tubes. Detection, how they are detected. So sometimes they may ask one odd question from this also. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेबल देख लेना है इससे। रफ आइडिया शुड बी देयर, वेवलेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ तक है और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, है ना। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम एंड यूरेनियम में गामा रेज मिल सकती है। ठीक है, तो दिस टेबल आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम्स आस्क्ड। नाउ एक और टॉपिक है इसमें, डिस्प्लेसमेंट करंट। In a CBSE there is a gap between the two plates of the capacitor, then also current is passed, AC current is passed. So there is the displacement current which is produced by the changing electric flux between the plates. This was noticed, this was given by the Maxwell. According to Maxwell, when capacitor is charged or discharged, then due to changing electric flux, यहाँ पे charges जो है change होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, करंट इज इंड्यूस्ड इन द गैप कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो गैप में जो करंट इंड्यूस होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो फ्लक्स इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की ऐड करके। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू अपॉन ए, एक एरिया ऊपर भी था कैंसिल हो गया ये, एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गॉसेस लॉ का फार्मूला आ गया, याद है गॉसेस लॉ में क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ यू कैन रिमेंबर दैट यू कैन जस्ट मैनेज दिस टॉपिक। तो यहाँ से क्यू मिल गया, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको आगे ये चेंजिंग फ्लक्स है, चेंजिंग फ्लक्स को टाइम से डिफरेंशिएट करना है ना? तो दिस इज द फार्मूला ये डिस्प्लेसमेंट करंट का।
एप्सिलॉन नॉट इनटू d∅/dt। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट फ्लक्स विल नॉट प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, कांस्टेंट फ्लक्स विल नॉट प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इफ दिस इज वेरिएबल देन ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट है। एसी में क्या होते हैं, चार्जेस चेंज होते रहते हैं, है ना। एसी में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो चार्जेस चेंज हो रहे हैं, है ना। तो देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते, दे विल आस्क द क्वेश्चन फाइंड, देखो यहाँ पर आपका कैपेसिटर का तुम्हें सारी वैल्यू दे दिया है ना, सी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी है ना, तो करंट इन द वायर, ये जो हम करंट वायर में करंट निकालते हैं आरएमएस करंट है ना, तो कितना आएगा, वी आर एम एस अपॉन एक्स एक्स। तो सेम करंट डिस्प्ले, सेम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की रहती है। जितना वायर में करंट रहता है आरएमएस करंट, उतना ही अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट भी रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के क्वेश्चन किए थे, कैपेसिटर में करंट फ्लोइंग, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू आरएमएस करंट इन द वायर्स। दोनों सीरीज में है तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज नहीं देखिए भी, दीज वैल्यूज आर नॉट नोन, बट आई डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू IRMS current. If you are able to find the IRMS current in the connecting wires, same will be displacement current in the gap between the two plates, because it cannot different, it cannot series में है, both the current should be same, ठीक है। तो otherwise if I give you कि changing flux is given by this relation, find the displacement current at t is equal to 2 seconds, 2 सेकंड में निकालना है, तो you can do it with this formula also। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। Alright, note down this and using the above formula you can just do it easily। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देख लो कैसे डिराइव किया। अगर आपको याद नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट करंट की हाउ टू डू द बिगिनिंग, तो ओम्स अपने गॉसेस लॉ से, ये गॉसेस लॉ है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें जो क्यू आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दो, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑलराइट, नोट कर लो एंड क्वेश्चन भी देख लो। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी दिखते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। ऑलराइट, देखो इसमें नाउ फॉर न्यूमेरिकल्स दीस सम क्वेश्चंस आर देयर, फाइंड आउट द रेडिएशन प्रेशर, है ना। उसमें उन्होंने यूज किया पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो फार्मूले के थोड़े डेरिवेशन बता देता हूँ, दे आर यूज्ड डायरेक्टली, बट यू मे थिंक ये फार्मूले कहाँ से आ गए ये सब इतने सारे, ठीक है। तो देखो रेडिएशन प्रेशर निकालना है फॉर न्यूमेरिकल, ये सारे फार्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए, थियरी पार्ट नहीं है बुक्स में।
डायरेक्टली दे हैव टेकन द न्यूमेरिकल्स एंड यूज द फार्मूला। अगर हमें फोर्स ड्यू टू ईएम वेव्स निकलना है, आर दे is the light or any other EM waves able to apply the force on the object? Answer is yes. कितना होगा फोर्स? तो लेट्स सी। वी नो पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने वर्क पर एनर्जी में, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर सी ले लेंगे यहाँ पर, लाइट की वैक्यूम की बात करें तो फोर्स विल बी इक्वल टू पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। P the power is given, है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम विल बी गिवन टू यू, पावर इज सो। ये रिलेशन कब होगा? फॉर कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग सरफेस। कोई सरफेस के ऊपर रेडिएशन पड़ा, उसने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया। अगर उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ट्वाइस हो जाएगा। मोमेंटम जो है, चेंज ऑफ मोमेंटम डबल हो जाता है अगर रिफ्लेक्ट होती है सेम स्पीड से। अगर कोई, है ना, सपोज मिरर ले लिया हमने विच इज रिफ्लेक्टिंग कंप्लीटली, तो मिरर के ऊपर ट्वाइस फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू ब्लैक सरफेस। कोई कंप्लीटली ब्लैक सरफेस है, पूरा ऑब्जर्व कर लेगी, तो उसके ऊपर फोर्स आधा लगेगा, इसमें डबल लगेगा। ठीक है, दिस फार्मूला यू टू रिमेम्बर। प्रेशर विल पावर, पी स्टैंड फॉर पावर, है ना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन इसके छोड़ देते हैं, फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं ना। इसके क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, देखो ये मिरर है, यहाँ से तुमने एक टॉर्च ली, टॉर्च से इसके ऊपर लाइट डालना है टॉर्च से, है ना। तो इसका वेट दे दे mg, तो उसके वेट को बैलेंस करना है रेडिएशन फोर्स से, तो इसको mg से इक्वेट कर देंगे, है ना। मिरर को हम कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एज्यूम कर लेते हैं, तो कितने पावर का सोर्स चाहिए, तो पावर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन कैन बी मेड। अनदर वन इज इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स ऑफ वेव की इंटेंसिटी, जिसका दूसरा नाम है एनर्जी फ्लक्स, इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी, कितनी एनर्जी है वेव में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉलिंग ऑन द सरफेस। सपोज ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट वेव या साउंड वेव पड़ रही है, तो कितनी एनर्जी है उसकी, एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट ए पावर, उसको पावर बोलते हैं। तो पावर अपॉन एरिया, अगर हमें किसी लाइट सोर्स का पावर पता है, कितने पावर का सोर्स है वो, और एरिया जो भी सरफेस एरिया है उससे डिवाइड कर दो, तो हमें उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर इंटेंसिटी मिल जाती है। यूनिट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर का वाट हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, गेटिंग। तो एनर्जी इंटेंसिटी इज नथिंग बट रिलेटेड टू एनर्जी ओनली, बट नॉट एग्जैक्टली, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पावर अपॉन एरिया, है ना, किसी सरफेस पर रेडिएशन वेव का, लाइट वेव का, एंड साउंड वेव आल्सो, इट इज वैलिड फॉर साउंड वेव आल्सो। उसकी साउंड वेव की इंटेंसिटी भी के लिए भी वैलिड है, लाइट वेव की इंटेंसिटी के लिए भी वैलिड है। तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया फॉलिंग ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे बोल सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ वेव falling on the surface normally per unit time per unit area. Got it? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला रेडिएशन का, हमने रेडिएशन मीन्स लाइट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमने फोर्स निकाला था। अभी हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर का सिंबल हम पी आर ले रहे हैं,
P हमने पावर का लिया था, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का भी हमने निकाला था P/C, पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय एरिया, बट पावर अपॉन एरिया इज नथिंग बट इंटेंसिटी, तो I/C। तो फार्मूला बन गया रेडिएशन प्रेशर का इंटेंसिटी अपॉन C। ठीक है, फार्मूला यू टू रिमेम्बर, डेरिवेशन में बता रहा हूँ कि सो दैट यू शुड नो हाउ डू वी गेट देम। डेरिवेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर थियरी पार्ट, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज किए उन्होंने फार्मूला ये सब, तो आई एम गिविंग यू हाउ दे कैन बी ऑप्टेड। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगेन कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग सरफेस के लिए ब्लैक सरफेस है पूरी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है पूरा, अब वेव्स पड़ रही है, लाइट वेव आ रही है इधर वेव, पूरी अब्सॉर्ब हो गई। अगर हमने उसकी जगह मिरर ले, रेडिएशन प्रेशर इज I upon C, intensity upon speed of light, or in case of perfectly reflecting surface, it will be 2I/C. अगर perfectly reflecting नहीं है तो okay, you can see this. Clear? Can you see it? अगर suppose it is not perfectly reflecting surface, not perfectly absorbing, in between कुछ दिया है ऐसा, है ना? जैसे ये दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल electromagnetic radiation of intensity I is incident perpendicular on the surface. If 70% of radiation is reflected, then find the radiation pressure. तो 30% अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब हो गया, तो जो अब्जॉर्ब हो गया उसको हम उसमें I/C लिखते हैं, है ना? कितना हुआ 30%, मीन 0.3। जो रिफ्लेक्ट हो गया कितना 0.7, उसमें 2I/C लिखते हैं, है ना? रिफ्लेक्टिंग में 2I/C, कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग में I/C, तो दोनों ऐड करके 1.7 I/C, है ना? दोनों के लॉजिक लगा दिए हमने। कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग के लिए 30% है, 0.3 I/C। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए 70%, 0.7, 2 I/C। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में 2 आ रहा है। तो दिस कैन बी आस्क्ड, you can find somewhere in these questions. We'll see NCERT book में कौन से क्वेश्चन दिए, that we are going to see. Short example, if you do that is sufficient. Just we can finish it today. ये just थोड़ा सा रह गया है, एक और formula, then 2 numericals. We can do it. This chapter will be over. Tomorrow we'll start optics. Second book we can start. Are you there? तुम लोग ऑनलाइन पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जैसे ये एक न्यूमेरिकल है ये वाला, नेक्स्ट वाला ये, तो उसमें उन्होंने फार्मूला यूज किया है ये एवरेज इंटेंसिटी का, प्रूव दैट एवरेज इंटेंसिटी का ये फार्मूला यूज किया उन्होंने। तो हाउ डू वी गेट दिस? लेट्स सी, प्रूव दैट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इज गिवन बाय दिस रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट into permittivity of vacuum into RMS electric field.
इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही ना ऐसे, तो उसकी आरएमएस वैल्यू भी होगी, पीक वैल्यू भी होगी, है ना। तो ये फार्मूला यूज किया उन्होंने। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शो यू, वी कैन प्रूव इट ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेयर डू वी डिड द यूज। देखो ऐसे आएगा ये, अभी हमने पढ़ी इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, है ना। अगर इसको हमने डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, सपोज speed is wave is moving and covering x distance in certain time t, है ना। तो x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, बैलेंस है, x is the distance covered, तो distance covered per unit time will be the speed, अगर वैक्यूम में है तो c लिखेंगे, और ये जो है a into x, ये a सपोज ये ऐसे समझ लो कि ये लाइट बीम है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, डिस्टेंस कवर्ड इज x इन टाइम t, दैट विल बी वॉल्यूम, तो दिस विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने किया हुआ है पहले ही, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, वेव के फॉर्म में, तो वेव की इक्वेशन होती है पीक वैल्यू ई इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी वेव की इक्वेशन, तो इट कम्स दिस, सी भी है यहाँ पर, और एवरेज वैल्यू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है ना। तो दैट इज 1/2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और इसको हमने आरएमएस एंड पीक वैल्यू में रिलेशन होता है ये वाला, तो आरएमएस में कन्वर्ट करके लिख लिया। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी इतना ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की भी इतनी, एनर्जी दोनों में इक्वल होती, तो ऐड हो जाएंगी दोनों मिलके इतनी हो जाएंगी, है ना। पीक वैल्यू में लिखना है तो उन्होंने ये यूज किया, ये वाला दिस रिलेशन एवरेज इंटेंसिटी का, तो इट कम्स, इसका डेरिवेशन नहीं है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू मे थिंक ये कहाँ से आ गया रिलेशन, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस, इसका ले सकते हैं पिक, तो वी कैन सी दिस क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर 2-3 more minutes, we'll complete this चैप्टर, हो जाएगा। न्यूमेरिकल सी बाकी है अभी देखो, तो ये वाला फार्मूला देखो इधर, यहाँ पे यूज किया उन्होंने इस क्वेश्चन में। सॉलिड एग्जांपल है this. Do you have any other class now? क्लास है No क्या sir, अभी? they currently don't have any class. इनका 5 मिनट में ले सकता हूँ एक्स्ट्रा, फिनिश हो जाएगा हाँ ये सर, chapter। ले सकते हो, क्योंकि ये वन अदर क्लास ओके ठीक है, तो देखो ये फार्मूला अभी सीक्वेंस में देख लेते हैं, दो न्यूमेरिकल है, एक तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सॉलिड एग्जांपल है, जनरली दे डोंट आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, जेईई नीट में ज्यादा आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। देखो अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने एनर्जी फ्लक्स दिया है, मतलब क्या होता है, ये इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है। तो इंटेंसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड दिया हुआ नहीं, टाइम दिया नहीं यहाँ पर, टी दिया, एरिया भी दिया हुआ है, तो यहाँ से एनर्जी मिल गई। और एनर्जी के बाद हमें मोमेंटम, हमने जो 8th प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, मोमेंटम विल बी एनर्जी अपॉन सी, सी से डिवाइड कर दो, ठीक है। और फोर्स में क्या होता है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एवरेज फोर्स होना चाहिए, दिस शुड बी एवरेज फोर्स। हाँ देखो यहाँ पे एवरेज फोर्स लिखा है, तो मोमेंटम आ गया तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन द सरफेस। तो लाइट जो है सरफेस के ऊपर फोर्स लगाती है, बट ये बहुत कम वैल्यू आती है, डोंट फील इट। अपना हाथ सामने रखिए सनलाइट में, तो यू देयर इज सर्टेनली सम अमाउंट ऑफ फोर्स which you may not notice because it is very small, but there is the force applied by every radiation including light, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये फार्मूले जो हमने डिस्कस किए ये सब
इसलिए डिस्कस किए कि देव यूज डायरेक्टली, यू में गेट सरप्राइज, ये कहाँ से फार्मूला यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। और ये वाला देखो, अभी जो हमने डिराइव किया था वो यहाँ पर है, देखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब at the distance 3 meter. Assume that efficiency is 2.5%. बाकी हीट में कन्वर्ट हो रही है ना, तो पावर इज 2.5%, तो इट विल बी 2.5 वाट हो रही है ना, 100 का 2.5 वाट हो जाएगा। तो पावर मिल गई तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। ऐसे बनेगा स्फीयर। एक मिनट, इंटेंसिटी कैसे निकाली इन्होंने, ये ऐसा इंटेंसिटी 3 मीटर पे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बल्ब है और ये 3 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर ये शेल हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा। तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, इंटेंसिटी इज पावर डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी इज पावर डिवाइड बाय एरिया, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द स्फीयर 3 मीटर, अब पूरा स्फीयर, इंटेंसिटी सब तरफ जाएगी ना, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर उसमें जा रही, ऑल डायरेक्शन। तो एरिया, तो इंटेंसिटी मिल गई हमें, ये पावर भी है, डिस्टेंस आर जो है 3 मीटर है, तो इंटेंसिटी मिल गई। तो बोला इसकी 50% इंटेंसिटी जो है दैट इज प्रोड्यूस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, हाँ, तो 50% उसमें जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है, 50% मैग्नेटिक फील्ड में जाती है। तो इसका आधा कर दो इस इंटेंसिटी का। और ओके, इंटेंसिटी इज, अभी हमने ये डिराइव किया था, देखो फार्मूला ऊपर, C इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू RMS स्क्वायर। तो आधी इंटेंसिटी लाइट में जाती है, तो यहाँ पे आधा कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो RMS आ जाएगी वैल्यू। इंटेंसिटी हमने निकाली यहाँ से, तो ये तो कांस्टेंट है, RMS मिल जाएगी, तो पीक वैल्यू निकाल लेंगे, √2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो दैट यू कैन डू इट फर्दर। मेन थिंग बात ये कहाँ से आ गया, वो मैंने प्रूव करके निकाला। इंटेंसिटी इज आल्सो नॉट डिफाइंड इन चैप्टर, तो वी आर डिफाइंड, so you can just do it। अभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं 8.5। दिस कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगेन, और बोर्ड में भी इसका कुछ पार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज 8.5, क्वेश्चन नंबर 8.5, शॉर्ट एग्जांपल है ये, दैट मच इज इनफ, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नाउ फाइनली लास्ट में देखो, ये है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने ये, इनकी जो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी ना, गॉसेस लॉ, इनको सबको यूज करके दिस वेव का, लाइट इज, he proved that light is nothing but a wave, electromagnetic wave का जो concept दिया, using these 4 equations he gave the light concept of light as a electromagnetic wave। so therefore these equations are called Maxwell's equation। पहली कौन सी है, ये गॉसेस लॉ वाली है, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जस्ट लिसन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E डॉट ds, हमने ds लिखा था, यहाँ पे dA लिखा है, एरिया वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेसेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको दिस वन। एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड में 0 है, बिकॉज डायपोल्स, बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स आर डायपोल्स, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस क्यू मैग्नेटिक चार्ज प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो 0 हो जाएगा राइट साइड में। तो दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये हमने फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा था, EMF को